Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will be answering the question what is astronomy and astrophysics field. But before I start, I just want to say clicking the subscribe button really grows the channel and just shows me that the content that I am making the channel go in the right direction. So click and subscribe really helps me out and thank you for the support. So anyway, let's jump right in and talk about astronomy. So mankind has looked up to the heaven since the start of civilization, searching to put a meaning and an order and understanding to the universe that we live in. So, firstly, astronomy is a branch of science that studies outer space, especially focus on celestial bodies, for example, stars, planets, comets, galaxies, and the cosmology. This term is basically defined in which cosmologists study the origin, structure, and fate of the whole universe. And the astrophysics, it is the branch of space science that deal with the study of physical theory of an astronomical objects. For example, planets, stars, galaxy, and so on. In another word, if I will say for the astrophysics, it employs the principles of physics and chemistry to find out the nature of the heavenly bodies. But nowadays, there is no clear distinction between astronomy and astrophysics. So, what is astronomy? How astronomy is true science? So, astronomy is based on observations and experiments that can be repeated, and when you will repeat those experiments, they will give you the same observation. And the second point, why astronomy is true science, is this, that astronomy makes precise prediction about our universe that can be tested to see if the prediction are true or not. For example, we can see the Hubble constant. And the third point is astronomy makes use of other well established science like physics and chemistry. और जैसा कि आप राइट हैंड साइड में ये एक फिगर में देख सकते हैं कि एस्ट्रोनमर, एस्ट्रोफिजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट, इन तीनों का क्या क्या काम होता है. सबसे पहले एस्ट्रोनमर्स आते हैं जिनका काम होता है ऑब्जर्वेशन लेना. ठीक है. एंड इन द ऑब्जर्वेशन पार्ट दे लुक आउट इनटू द यूनिवर्स थ्रू अ टेलीस्कोप एंड क्लासीफाई व्हाट दे हैव सीन. एंड एस्ट्रोफिजिस्ट will then try to explain these observations using the physics, and which is what has led to our understanding the inner working of stars. Finally, cosmologists. So cosmologists, they try to explain the evolution of the universe as a whole. How did the Big Bang happen and how did the universe evolve into what it is today. So here in this slide you will see that astrology is not a science. Many people considered that astrology is a kind of science, but for astronomer and for astrophysicist, astrology is not a science. Why? Here are the following reason. If you want to know the more reason, just search the Google, and for more clear to understand this concept, I will suggest you to read astronomy, and especially for the young generation, I must say that please follow your career in astronomy and astrophysics. So
The first point is why astrology is not a science is this, that the stars in a constellation are sometimes thousands of light years apart and the connection between them is arbitrary. And the second thing, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि राशियाँ, सो हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे पास 12 राशियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं 12 राशियाँ हैं. बट इफ़ यू विल रीड द एस्ट्रोनॉमी, देर आर 13 constellations in the zodiac. The 13 is Ophiuchus. Okay. Moreover, if the distance are not important in astrology, then where is the astrology of galaxies, quasars, nebulas, and black holes, and so on? And the important point here note is, why do horoscope of the same zodiac sign in different newspaper differ so much? And similarly, you can find the many more reasons. So, why do we study astronomy? Why do we study astronomy? It's really important things to know, that why people are curious to know about the astronomy and astrophysics. The first point is, which is very important for everyone, natural disaster. If you want to know that what natural disaster happened in our past, you must search about this Tunguska event. This Tunguska event was a large explosion that occurred near the Tunguska river in Russia. And similarly, you can find the many more natural disaster, asteroid impact, meteorites, and so on. And the second thing is recreation and aesthetic. This means that our universe creation is really beautiful when you will do astronomy. Like if you will see the image, जो ये सेकंड इमेज है, यहाँ पे देखो कि हमारे पास स्टार फॉर्मेशन के एक नेबुलास की इमेज है. तो यूनिवर्स की बहुत ब्यूटी दिखेगी आपको जब आप एस्ट्रोनॉमी करोगे. सो जब आप एस्ट्रोनॉमी स्टडी करोगे, आपको आपका ओरिजिनल प्लेस दिखेगा यूनिवर्स में, कि आप वेयर आर यू इन दिस यूनिवर्स. एंड मोर ओवर इन द कॉस्मोलॉजी आप ये स्टडी करोगे, व्हाट इज़ द ओरिजिन एंड फेट ऑफ द यूनिवर्स. Also, which is very important to say, true science versus science fiction in astronomy, and moreover, how are stars formed, and many more unanswered questions, and your curiosity to know the mysterious things of universe. All of these type of question, astronomy will help you to answer all of these questions. Now, अभी तक मैंने आपको बताया एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में, कैसे हम एस्ट्रोनॉमी में क्या रिसर्च करते हैं, एस्ट्रोफिज़िक्स में क्या रिसर्च करते हैं. सो सबसे पहला जो हम स्टेप डिसाइड करते हैं नॉलेज के लिए, जो बेसिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज़ आवर सोलर सिस्टम. सो हमारे सोलर सिस्टम में हमारे पास 8 प्लैनेट हैं. एंड हेयर इन दिस फिगर इफ़ यू विल सी, I have also added the Pluto. जैसा कि अभी एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो प्लैनेट्स जो है उसमें से प्लूटो को डिस्कार्ड कर दिया गया है. वो क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. सो यहाँ इस फिगर में अगर आप देखो तो आपको डायामीटर ऑफ प्लैनेट्स क्लियरली इमेज में दिख रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जुपिटर है, जिसका डायामीटर है 1,39,822 किलोमीटर. सो जस्ट अ नॉर्मल कंपैरिजन से भी आपको लग रहा है कि हमारे पास जो जुपिटर है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है. और फैक्ट जो कि आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं, हमारे पास देर आर टोटल मोर देन 171 मून्स इन आवर सोलर सिस्टम. And here
you will see that there is a distance in the solar system on a linear scale, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से हमने डिस्टेंस मेज़र किया है किसी भी प्लैनेट्स का. सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो डिफाइन होता है एस्ट्रोनॉमी में, और जो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं दैट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ which is roughly the distance from earth to sun and equal to about 1.5 into 10 raised to power 8 kilometer. So in the next slide, yes, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस फिगर में कंपैरिजन दिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट आता है ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज़ आती है हमारे प्लैनेट्स की. इन द नेक्स्ट फिगर में हमारे पास आता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, एंड इन द लेफ्ट साइड देर इज़ अ इमेज ऑफ आवर प्लैनेट वेयर डैश्ड लाइन शोज द डिग्री ऑफ टिल्ट इन रिलेशन टू सन एंड एरोज शोज द डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट्स रोटेशन. फर्स्टली ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखो तो इसेंट्रिसिटी जो प्लूटो की है वो है हमारे पास 0.24, वाइल मरकरी का है, मरकरी की है 0.20. इट्स देर आर मैनी रीजन्स दैट वाई वी डिस्कार्ड द प्लूटो. द वन ऑफ द मेन रीजन दैट वी कंसिडर्ड is the eccentricity for this Pluto, and moreover you will compare the many properties of all of other planets, and it's just because of this eccentricity. And see the inclination angle which is about 17 point something 142. So because of this eccentricity जो है ये हमने प्लूटो को डिस्कार्ड किया प्लैनेट से, एंड मैनी मोर कंसीडर करते हैं कि प्लूटो इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, एंड देर आर मैनी रीजन दैट वाई वी डिड नॉट कंसीडर प्लूटो एज अ प्लैनेट. सिंस ये जो लेक्चर है ये एक नॉर्मल लेमैन, नॉर्मल भी इंसान जो 12th क्लास का स्टूडेंट भी है वो भी इस लेक्चर को समझ सके, इसलिए ये लेक्चर मैंने बहुत बेसिक बनाया है ताकि हर जो स्टूडेंट है वो इस कोर्स के बारे में नॉलेज ले सके, और अपने 12th के बाद वो ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाने के बजाय एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स को भी अपना कैरियर चूज़ कर सके. इन द नेक्स्ट स्लाइड, सी this is the beautiful image of Milky Way galaxy. This is the top view of Milky Way galaxy. So ये है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास सेंटर में आता है न्यूक्लियर बल्ज, जिसको हम कहते हैं सेंटर में हमारे पास ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल. और क्योंकि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इसमें आर्म्स अगर आप देख सकते हैं क्लियर इमेज में कि हमारे पास सैजिटेरियस आर्म है, देन हमारे पास नोम आर्म है, देन पर्शियस आर्म है, देन आउटर आर्म है, एंड सैजिटेरियस आर्म में ओराइन स्पर में जो हमारा सन की पोजीशन दिख रही है आपको, ये सन की पोजीशन दिख रही है यहाँ पर, और ये सन की पोजीशन हमारा सोलर सिस्टम है यहाँ पर. दिस इज द मल्टी वेवलेंथ मिल्की वे इमेज टेकन बाय नासा इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रीजन, जैसे कि रेडियो, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड. सो ये बहुत ब्यूटीफुल मल्टी वेवलेंथ मिल्की वे का इमेज लिया गया है नासा ने, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. वन ऑफ द मेन रीज़न ये था इस इमेज का शेयर करना आप सबके साथ थी
कि एस्ट्रोनॉमी कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। जब आप इसको पढ़ोगे, आप अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को डिफरेंट रीजन में देखोगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऑप्टिकल रीजन में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर बार है वो कितना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी स्टार्स डज द मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन? Where is our solar system located in the Milky Way galaxy? Is the sun moving through the Milky Way galaxy? And if so, about how fast it is moving? So, you will discover the Milky Way galaxy is made of billions of stars and gas and dust, all bound together by mutual gravitational attraction. Then the properties of our Milky Way galaxy: Earth location in Milky Way, and there is a huge black hole at the center of our galaxy, which is called Sagittarius A star black hole. The observation reveals the presence of significant hidden mass in the Milky Way, but we don't know what it is. So, ये हमारे पास मिल्की वे का साइड व्यू है, एज ऑन व्यू कहते हैं इसको, जो एस्ट्रोनॉमर्स ने एज ऑन व्यू लिया है मिल्की वे गैलेक्सी का, जिसमें हमारे पास मिल्की वे डिस्क है। आप देख सकते हैं राइट साइड हमें डिस्क लिखा हुआ, देन न्यूक्लियर बल्ज इन द सेंटर एंड हेलो। So this is again the Milky Way top view. Top view showing spiral arms. Latest research shows that Milky Way also has a bar in the center. But since, as I said, this lecture is really basic so that anyone can understand. So let's go to the next slide, and here it is how we map the galaxy. How we map the galaxy. So here you will see that in the first position we have sun, and here in the line, through the line of sight by radio waves from different gas clouds show slightly different Doppler shifts, permitting astronomers to sort out the gas clouds and map of the galaxy. Again, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये लेक्चर जो है ये एक नॉर्मल 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड इवन फॉर द बैचलर एंड इवन फॉर द मास्टर्स के लिए एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज है, आपको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स के सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में बताने के लिए, सो दैट इन द फ्यूचर इन योर कैरियर आप एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स को अपना पैशन बनाएं और इस फील्ड में अपना एक कैरियर चूज करें। देन मैप ऑफ द गैलेक्सी। हेयर इन दिस स्लाइड, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये रेडियो टेलीस्कोप सर्वे है 21 सेंटीमीटर रेडिएशन का, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बता रहा है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। और इसी का एक छोटा जो लेफ्ट इमेज रिप्रेजेंट कर रहा है यू आर हेयर, और इसको हमने बताया सैगिटेरियस आर्म में, कैसे आप सैगिटेरियस आर्म के ओराइन स्पर में हम रहते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ओराइन स्पर में है। दिस इज हाउ बिग एंड हाउ मेनी स्टार्स आर इन द मिल्की वे गैलेक्सी। So, diameter about 1 lakh light year. Only the visible stuff
डार्क मैटर एरिया इज मच लार्जर। कहने का मतलब है कि ये जो आप फिगर में बिलो में जो आप इमेज देख रहे हो, हमारे पास ओनली 1 लाख लाइट ईयर ही विजिबल जो स्टफ है वो है, और जो बाकी है वो हमारे पास डार्क मैटर है। ओके, एंड अबाउट 2000 light year thick where we are, and there are 200 billion stars in our Milky Way galaxy, and sun is 26,000 light year from the galactic center. What kind of stars? So जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, एबव जो इमेज है ये हमारे मिल्की वे का साइड व्यू है, जिसमें कि न्यूक्लियर बल्ज और गैलेक्टिक न्यूक्लियस है। सो जो न्यूक्लियर बल्ज है अबाउट 20,000 लाइट ईयर्स डायमीटर है इसका, एंड जो डिस्क है, डिस्क जो आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं, डिस्क कंटेन्स गैस, dust and population 1 stars. Population 1 star, there are 2 type of population of stars. The first population 1 stars are those stars having metal rich stars, having metal rich elements. And halo in the below figure of side view of Milky Way galaxy, halo is composed mostly of population 2nd star. Okay, पॉपुलेशन 2nd स्टार हो गया ओल्ड मेटल पूर स्टार, जिसमें मेटल का पूर कंटेंट होता है। नाउ व्यू टुवार्ड्स द गैलेक्टिक सेंटर। अब जब आप सैगिटेरियस मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ से जब आप गैलेक्टिक के सेंटर की तरफ देखेंगे, तब आप देखेंगे कि देर आर millions of stars in the disk of our galaxy that will fill this view that you are able to see in this slide. Looking toward the galaxy center in Sagittarius. So again, अगर आप विजिबल लाइट में सैगिटेरियस गैलेक्टिक सेंटर में देखोगे तो आपको मिल्की वे गैलेक्सी इस तरीके का दिखेगा। देन अगेन इन इंफ्रारेड लाइट में ये इमेज, जो कि जैसा कि हमने मल्टी वेवलेंथ इमेज में देखा था डिफरेंट रीजन में। सो दिस इज द गैलेक्टिक सेंटर जूमिंग इन infrared light that shows very high density at the center. So जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटर में बहुत हाई डेंसिटी है गैलेक्टिक सेंटर में, जो कि ब्लैक होल सैगिटेरियस ए स्टार है। जब वेरी कंपैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो सोर्स है एट द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी नियर द बॉर्डर ऑफ द कॉन्स्टिलेशन सैगिटेरियस। And the next is galactic nucleus in radio waves. So ये हमारे पास इमेज है सैगिटेरियस ए स्टार की, जो कि ब्लैक होल है एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी एंड इट्स वेरी ब्राइट इन रेडियो वेव्स। Galactic nucleus in infrared. So here in this diagram there are stars orbiting a massive object that cannot be seen, a 4 million mass black hole where the Sagittarius A radio source is located. Sagittarius A means the supermassive black hole in the center of our Milky Way galaxy. The black hole area at the center of our galaxy might look something like this. So जो ये इमेज है ये हमारा इमेज है NGC 4261। सो ये कैटालॉग होता है हर एक गैलेक्सी का, क्योंकि हम आज के टाइम पर हमारे पास बहुत बड़ा कैटालॉग है गैलेक्सीज़ का,
जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज है, और कैसे हम गैलेक्सी को क्लासिफाइड करते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। आप उस नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ओवरव्यू ऑफ आवर मिल्की वे एंड अदर गैलेक्सीज, कैटलॉग of galaxies and the types of galaxy, how Hubble defined the types of galaxy. So उसमें से एक जो ये गैलेक्सी है NGC 4261, सो इसके सेंटर में जो है ब्लैक होल है, जिसका हबल स्पेस टेलीस्कोप ने डाटा लिया था, और उसने उसका जो रिज़ल्ट था वो कुछ इस तरीके का था, विच इज़ अबाउट 17 आर्क सेकेंड, विच इज़ 400 लाइट ईयर्स। सो ये कोर है गैलेक्सी NGC 4261 का ब्लैक होल। नाउ ऑर्बिट्स ऑफ स्टार्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। सो ये तो इमेज आ गया हमारी NGC 41444 गैलेक्सी का, which is very very similar to Milky Way galaxy. Since this galaxy is also spiral and our Milky Way galaxy is also spiral, so we have just taken this image to just show you the different part of our galaxy. जैसे कि आप देख सकते हो, जो सेंटर पार्ट है वो हमारे पास न्यूक्लियर बल्ज है, और जो सेकंड जो रेड बार है डिस्क स्टार ऑर्बिट, यहाँ पे डिस्क स्टार ऑर्बिट हैं, जो स्टार्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं सेंटर के चारों तरफ। एंड द येलो लाइन में आप देखोगे हेलो स्टार ऑर्बिट। नाउ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवर गैलेक्सी रोटेट्स एंड द सेंटर रोटेट्स फास्टर देन द आउटर पार्ट्स डू, केपलर्स थर्ड लॉ। हेयर आप देख सकते हो हमारे पास दो फिगर हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में ये बताता है कि इफ आवर गैलेक्सी रोटेट्स लाइक अ सॉलिड डिस्क, द ऑर्बिटल स्पीड वुड बी ग्रेटर फॉर स्टार्स एंड गैस इन लार्जर ऑर्बिट, बट दिस इज नॉट द केस. So the case for our galaxy is the second case. Stars in smaller orbit would rapidly overtake those in larger orbit. कहने का मतलब है कि जो स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर में होंगे वो फास्ट मूव करेंगे एज कंपेयर टू आउटर स्टार के, विच इज़ केपलर्स थर्ड लॉ. और केपलर्स थर्ड लॉ ये कहता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अवर अगर सोलर सिस्टम की मैं बात करूं, तो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट, फॉर एग्जांपल मरकरी, वीनस, अर्थ, जो प्लैनेट सन के पास होगा वो फास्ट मूव करेंगे एज कंपेयर टू आउटर प्लैनेट, विच इज़ केपलर थर्ड लॉ. बट होता क्या है कि जो प्लैनेट सन के पास फास्ट मूव कर रहा है वो आउटर में स्लो मूव कर रहा है. बट दिस केस इज अपोजिट इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी. जो सेंटर ऑफ बल्ज ऑफ गैलेक्सी, जो बल्ज न्यूक्लियर बल्ज है सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, वो ऑर्बिट जो है उसके पास के जो ऑर्बिट हैं वो स्लो मूव कर रहे हैं एज कंपेयर टू आउटर ऑर्बिट के. तो जैसा कि आप इस ग्राफ से ये समझ सकते हो, देख सकते हो कि अलोंग द वाई एक्सिस आई हैव टेकन ऑर्बिटल स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड, एंड अलोंग द एक्स एक्सिस वी हैव डिस्टेंस फ्रॉम गैलेक्टिक सेंटर, कि हमारा डिस्टेंस गैलेक्टिक सेंटर से कितना डिस्टेंस है, विच इज़ इन लाइट ईयर. So basically in this first line of graph that shows the rotation curve of our galaxy. जैसा कि आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट ग्राफ है अबाउट 40,000 लाइट ईयर के बाद ये ग्राफ डिक्रीज होना चाहिए था. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, जो ऑर्बिट था उसका ऑर्बिट की जो स्पीड थी वो डिक्रीज होनी चाहिए थी.
बट क्या हुआ जब ऑब्जर्वेशन लिया गया कि जो ये रोटेशन कर्व है हमारी गैलेक्सी का, ये डॉटेड लाइन शो करना चाहिए था बट इसने डॉटेड लाइन नहीं शो किया। इसने जो कर्व शो किया वो कुछ इस तरीके का था हार्ड लाइन में। तो जो ये बिल्कुल एकदम कंप्लीट लाइन शो कर रहा है इन द अबव लाइन, एंड जो ये डॉटेड लाइन है, नाउ दिस डॉटेड लाइन, what this dotted line shows, if there was no material beyond the visible edge of the galaxy, orbital speeds at large distance should decline as shown by the dashed line. This is not what is observed. सो कहने का मतलब है कि कुछ तो मैटर है जो हमारी गैलेक्सी के बाहर है, जो उसको फास्ट मूव करवा रहा है। ओके, एंड दैट मैटर इज कॉल्ड डार्क मैटर। ये एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ डार्क मैटर। बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट लेके कि कैसे हमारी इनर जो ऑर्बिट है वो फास्ट मूव करनी चाहिए एज कंपेयर टू आउटर के। बट आफ्टर सीइंग दिस ऑब्जर्वेशनल, आई एम सेइंग अगेन, दिस इज ऑब्जर्वेशनल ट्रू रिजल्ट ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर। सो प्लीज़ बिलीव ऑन दिस इमेज कि जो ये आउटर ऑर्बिट है ये फास्ट मूव कर रहा है एज कंपेयर टू प्रिडिक्टेड बाय कैप्लेरियन ऑर्बिट। सो ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मैटर है विच इज़ डार्क मैटर। नाउ हाउ मच डार्क मैटर डज आवर गैलेक्सी हैव? द स्टार्स एंड द other object that gives off radiation account for only 10% of the galaxy total mass, and the other 90% of our galaxy is made of stuff that we can't see at any wavelength of radiation, so we call it dark matter. And dark matter forms a sphere around the galaxy at least 12 times farther from the center that we are. And the important thing is we don't know what is dark matter, but there are many astrophysicists who are working in this dark matter, in this field, especially astroparticle physicists. This is really growing branch in the field of astrophysics, जिसमें कि पार्टिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिस्ट जो हैं वो अपनी रिसर्च को कंबाइन करते हैं और वो स्टडी करते हैं डार्क मैटर की एंड इट्स प्रॉपर्टीज की। तो आज के टाइम के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो हमें बहुत कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डार्क मैटर की पता चल गई हैं, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है डार्क मैटर की और एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्स की। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर टू नोट इज़ दिस, that we don't know what actually dark matter is made of, and but it interact through gravity that you have seen in this graph. So what do you think? How many stars does the Milky Way galaxy contain? Think about it, and here is the answer. The Milky Way has about 200 billion stars. So next, where is our solar system located in the Milky Way galaxy? The solar system is in the Orion's arm, about 26,000 light year from the center of our Milky Way galaxy. Is the sun moving through the Milky Way galaxy, and if so, how fast it is moving? Okay, the sun orbits the center of the Milky Way galaxy at about 8,28,000 km per hour. How many miles per hour is that? You can calculate that. Okay, so here in this diagram we will study our galactic neighborhood, जिसमें कि सबसे पहले मेरे पास आता है राइट हैंड साइड में एंड्रोमेडा गैलेक्सी. दिस एंड्रोमेडा गैलेक्सी is the largest member of the local group, and this view shows the dusty spiral arms that make up its disk
and its yellowish galactic bulge, and in the in the below side we have this pinwheel galaxy, which is local group's third largest member, pinwheel galaxy, that resides in the constellation Triangulum. ये ट्राइंगुलम गैलेक्सी में है. It is only about 1/10 the size of Andromeda galaxy and the Milky Way galaxy. ये हमारे नेबरहुड में आती है. And the important thing to note are these two images on the left side. The first is large Magellanic Cloud and the second is small Magellanic Cloud. This large Magellanic Cloud is the Milky Way's largest satellite galaxy, which is about I think 1,60,000 light year away. And the brilliant red nebula on the left side is the largest known star forming region in the local group. And about the small Magellanic Cloud, the small Magellanic Cloud orbits the Milky Way at a distance of about 2 lakh light year. It collides with its larger neighbor, which is large Magellanic Cloud. So, in the coming figures in this slide में आप देख सकते हो कि हमने जो यूनिवर्स का नहीं बोलूँगा, मतलब हमारा जो गैलेक्सी का है उसका हमने सोलर सिस्टम को सेंटर में लेकर, जो सन सेंटर में है और ये एरो जो राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड द गैलेक्टिक सेंटर, हाउ आवर सराउंडिंग लुक्स which is 12.5 year light year away, and now how surroundings looks from 250 light years away. जो भी आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल हाइडस क्लस्टर हो गया, ये सब क्लस्टर हो गया, अर्सा मेजर हो गया, these are the name of the stars. This Hydes cluster is not the name of a star, it is cluster as you see in this diagram. Cluster is a group of stars. बाकी जो भी आप नेम देख रहे हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड सो ऑन, दीज आर द नेम ऑफ द स्टार्स सराउंडेड टू आवर सोलर सिस्टम. एंड द नेक्स्ट 5000 लाइट ईयर अवे हमारे पास देखो सैगिटेरियस आर्म है, देन ओराइन स्पर में पर्शियस आर्म भी है, क्रैब नेबुला. दीज आर द ब्यूटीफुल इमेज दैट यू शुड कंसंट्रेट, दैट हाउ ब्यूटीफुल to do astronomy and astrophysics. And this 50,000 light year away, and this is 500,000 light year away, and here it is 5 million light year away. Now 100 million light year away, this is 1 billion light year away, and similarly we have many things in our universe. And this is 14 billion light year away, how universe look. And this is again the beautiful image, which is a radiation from the beginning of the universe, which is 13.7 billion year ago. So in the end, just I will finish my talk with the quotation by famous astrophysicist Stephen Hawking. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that
you don't just give up. सो इस लेक्चर का मेरा यही एक सबसे बड़ा गोल था कि मैं अपने फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड जो भी मेरे इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट था कि कैसे हम इस एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स कोर्स को यंग जनरेशन तक पहुंचाएं और वो इस कोर्स के बारे में जानें अच्छे से और वो इसको एक कैरियर ऑप्शन रखें। हालांकि क्या हो रहा है, बहुत सारी हमारे कुछ लोग हैं जिनको ट्वेल्थ के बाद कैरियर ऑप्शन नहीं मिलता कि हम क्या करें। ट्वेल्थ के बाद एक इंजीनियरिंग फील्ड है, एक मेडिकल फील्ड है। सो देयर इज़ आल्सो दिस न्यू फील्ड which is very very interesting. So I will request and also want supports from all of you जो मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं कि कृपया मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल को शेयर करें उन लोगों के साथ जो रियल में यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और यूनिवर्स के बारे में अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को इस फील्ड के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं। मेरा उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सबको इस कोर्स के बारे में नॉलेज दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूँगा उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा नोटिफिकेशन के थ्रू। सो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर precious time that you have shown to me. Thank you very much.